Hi and welcome to MS Trading. And आज का interview is perfect for us, and we have someone who is inspirational. And this interview has been awaited for a long time, and I'm sure it's going to hit the internet. And because she is one of the inspirations for us as well. Please welcome Mrs. Priyanka Khoth. Priyanka Khoth has applied for the exam for Veer Nari if in SSB and she has cleared it. We have some inspirational talks around that, how she has completed this course and why she did pick up this particular entrance exam and what inspired her to be where she is today and pick up something which is not usual for a married woman and think out of the box and what inspired her to be there where she is today. Thank you, Priyanka, for your time and thank you for coming on this show. Thank you, ma'am. It's my pleasure, ma'am. Thank That's you. Emma's helped me a lot. Yeah, I have heard a lot about you from the director himself, Dr. Colonel Mohinder Pal Singh. So we will come to the session with him on what are his takes with about you in during the course of the interview towards the end. So now I would just like to know, Priyanka, what inspired you to be a part of AMAS, to be a part of the exam that you had given, and what inspired you to take up this particular event? My situation itself inspiring me, ma'am, because after demise of my husband, means it's not easy. Means the first question in front of me, what to do the next? Because I was just 26 and the whole life in front of me, and my daughter is just 5 years old. I want to protect her career also and my family too. Because just 1 month before, my mother-in-law also, means my mother-in-law also, we lost my father-in-law also. So whole family is totally collapsed, and my husband was the only means backbone of my family. So I want to take his place also. So that all things motivate me. And after such conditions, and after such situations, means society look at us in a different view. I want to change that view and also broke that all limits and motivate to other women like me. Like there are so many, I mean, very few numbers are there who are preparing for the VDRE entry, and I want to just motivate them too. Thank you, Okay, ma'am. so you spoke about वीरनारी एंट्री. ये एग्जाम किन के लिए होता है और ये कैसे लड़कियां इनके लिए अप्लाई कर सकती हैं? मतलब जो मतलब हस्बैंड शहीद होने के बाद जो विडोज होती है, वो अप्लाई कर सकती है। एज लिमिट भी हमारे यहाँ मतलब रिलीफ मिला है। जस्ट नॉर्मली 24 कुछ है सीरियस एंट्री के लिए, गर्ल्स के लिए, बट फॉर अस इट्स 35। सो मैक्सिमम वुमेन ट्राई कर सकते हैं इसके लिए। और कि ये कुछ लिमिटेड सीट होते हैं एंड इसके लिए भी काफी टफ एप्लीकेशंस होते हैं, काफी टफ कंपटीशन होते हैं एंड उसके बावजूद आपका पर्सनल भी कुछ ग्रीफ ग्रीफ होगा, तो आप खुद वो मोमेंट से बाहर निकल के ये चीज पे फोकस करना कितना टफ होता है? Yes, ma'am. The first challenge is to get out from that grief, because that we are totally depressed, and it's not possible to just move on immediately and just because gap भी बहुत था। मेरी पढ़ाई 2017 में I graduated, and after then just I started study for just last year for SSB। तो एक गैप भी बहुत था, तो इसलिए फिर से वो सब दुख भुलाकर फिर मतलब पढ़ाई करना इट्स नॉट एज इजी। फर्स्ट मतलब पढ़ाई भी कर लेंगे, बट जब पता होता है कि एक ही सीट होती है, एक एसएसबी के लिए, टेक के लिए एक सीट थी और नॉन टेक के लिए एक सीट थी, फिर ऑल इंडिया हमें क्यों मतलब कैसे मिले, इस सोच के भी थोड़ा सा हम डिमोटिवेट होते हैं। पर मुझे मेरे एसएसबी में जस्ट 8 widows was there, एंड आई वॉज द वन हु स्क्रीन्ड इन। तो ऐसे मतलब ऐसे भी होता है कि बहुत कम वीडियोस आती है और सब फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं होती है। जस्ट आई ऑल्सो मीन्स मुझे भी पहले ही अटेम्प्ट में निकालना था, इसलिए मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड थी। मैं एमआस भी गई थी और फुल्ली एज मैंने वहां का रूटीन एज इट इज फॉलो भी किया था घर पे। सो आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड, सो आई स्क्रीन इट इजीली एंड रिकमेंड भी इजी लगा मुझे। एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू कि एमएस का कैसे सुना आपने और एमएस कैसे ज्वाइन किया आपने? From the initial, when I got to know about SSB, that was one of major.
मीन्स जस्ट नियर टू माय विलेज। तो जबलपुर में पोस्टेड थे रिकॉर्ड ऑफिसर करके, रिकॉर्ड ऑफिसर मेजर रवि माई। उन्होंने मुझे एसएसबी के बारे में बताया, नोटिफिकेशन भी भेजी, और इवन उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प की। और उन्होंने मुझे एमास के बारे में भी बताया था कि बिफोर गोइंग टू एसएसबी यू जस्ट गो वंस, यू डोंट नीड एनीथिंग। एंड वैसे ही हुआ। मैं एमास से आने के बाद मुझे मतलब कुछ कंफ्यूजन नहीं था। मतलब पहले ही लगता है ना, मतलब हम उस बैकग्राउंड से नहीं है, कोई मेरी फैमिली में इनके अलावा कोई डिफेंस में नहीं था, तो मुझे कोई नॉलेज नहीं था। तो एमएस से आने के बाद मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं था। होल स्टडी मटेरियल आई हैव, सो जस्ट आई नीड टू गो थ्रू ऑन दैट। एंड जो सपोर्ट कर्नल भी देते हैं, एंड जो गाइडेंस कर्नल देते हैं, स्पेशली व्हेन ही नोज कि कोई एस्पायरिंग है एंड दैट पर्सन कैन डू इट, तो वो बैकअप भी काफी अच्छा होता है उनकी तरफ से। यस, मतलब उन्होंने मतलब हर तरफ से हेल्प किए। मीन्स नॉट ओनली फॉर द एसएसबी, बट इवन मतलब हमें फंड जो मिलता है वो इन्वेस्ट कैसे करना है, हमें क्या क्या करना है, मतलब फिजिकली भी कोई मतलब हेल्दी होते हैं तो उनको ऐसे जिम वगैरह, मतलब होल थिंग्स ही सजेस्टेड, नॉट ओनली फॉर मी। वो पर्सनली सबसे इंटरेक्ट करते हैं और उनको जो नीड है वो राइट। बताते हैं। और वो मतलब क्या पूछने वाले हैं, कैसे पूछ सकते हैं, और हमारे बारे में भी जानते हैं पर्सनली सब। जब मैं भी पर्सनली उनसे इंटरेक्ट हुई थी, ही आस्क्ड मी सेवरल क्वेश्चन अबाउट माय फैमिली, हाउ आई लिव हियर, अबाउट माय डॉटर। सो ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर एवरीथिंग। अब कोई ऐसी डिफिशियंसी हो, देन ही गाइड अस पर्सनली टू डू दिस or any question and answer, we can freely ask him personally. Initially I thought he is the director of that amas, he will not he will not interact that much. So but नहीं, वो maximum उधर classes, मतलब maximum hours we are spending with him. He shared so many experiences, and even personally also in cabin also I asked several questions, all doubts he cleared all things. राइट। सो एक एक ऐसा होता है ना कि हम यूजुअली देखते हैं कि जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनकी स्टोरीज सुनते हैं, उनकी चीजें जानते हैं, बट हमारे सामने जो लोग बैठे होते हैं उनका ही खुद का इतना स्ट्रगल, हसल एंड कमिंग अप टू द पेस, वी हैव सो मेनी इंस्पिरेशन इन फ्रंट ऑफ अस टू, जिन्होंने ये स्ट्रगल करके जो आगे बढ़े हैं। सो एनी वन हु हैज इंस्पायर्ड यू, एंड आपको कैसे सपोर्ट मिला आपकी खुद की फैमिली से, आपकी मदर इन लॉ से, एवरी हाउ वाज एवरीथिंग पुट इनटू प्लेस? हाँ, मतलब ऐसे वीर नारी से जो मतलब ऐसे अफसर हुए हैं बहुत कम थे। तो मुझे पता नहीं था कि, और मेरे हस्बैंड नायक थे, तो आई थॉट जस्ट ऑफिसर्स और वाइफ हैज दैट चांस, एंड दिस चांस इज नॉट फॉर मी। सो आई सर्च सेवरल टाइम्स। जब मैंने एमआस के भी वीडियोस देखे जिनके मतलब ऐसे रिकमेंड हुए हैं, तो वीर नारी के मुझे टू थ्री ऐसे वीडियोस मिले इंटरव्यू के। तो मैंने वो देखे तो जस्ट आई गॉट अ रिलीफ दैट यस, इट इज फॉर मी टू। देन फैमिली से सपोर्ट इनिशियली भी था, मतलब एज फ्रॉम स्टार्टिंग दे सपोर्टेड मी दैट यू कैन डू एनीथिंग व्हाट आई वांट। बट फिर भी एसएसबी ऐसे कोई किसी से भी बोलो ना कि एसएसबी की प्रिपरेशन कर रही हो, दैट दैट्स फर्स्ट दे टोल्ड मी दैट डोंट प्रिपेयर इट, सो मेनी पीपल ट्राइंग फॉर दैट एंड दे कांट गेट सक्सेस। सो प्लीज मीन्स ऑलवेज दे ऑलवेज पुश मी फॉर प्लान बी, कि कुछ और कर लो, कुछ और कर लो। बट स्टिल कहीं लग रहा था कि मैं हो जाऊंगी, और फिर भी मुझे इंग्लिश की ज्यादा ज्यादा दिक्कत थी, इसलिए कहीं लग रहा था कि कुछ मिस ना हो जाए और मैं बोल ना पाऊँ। मतलब पढ़ाई करने से भी ज्यादा होता है कि उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट करना। तो फिर राइट। इंग्लिश की वजह से समवेयर आई मीन्स मुझे लग रहा था कि मैं नहीं हो पाऊंगी। और घर वाला मतलब बाकी के जो लोग, मैं बताती ही नहीं थी ज्यादातर कि मैं एसएसबी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, फिर भी कोई आर्मी बैकग्राउंड से हो तो बता देती थी कि कुछ हेल्प मिल जाए। तो फिर फर्स्ट वो बोलते थे कि नहीं करो, मतलब उधर जब अफसर्स के ही मतलब डॉटर एंड सन आते हैं वो फुल्ली प्रिपेयर होते हैं, तो नहीं करो इसे बोल रहे थे। फिर भी एक बार तो देख लेते हैं, इतनी प्रिपरेशन की है तो। फिर एमआस जाने के बाद से तो लग रहा था कि मैं हो जाऊंगी। मतलब पता था ना सब क्या क्या करना है। और फैमिली ने भी उसके आने के बाद मतलब वो उतना उतना घंटे घर में पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था जितना आवास में होता है। फिर भी घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया, और मैं भी जस्ट स्टडी स्टेशन एंड ऑल थिंग्स आई डिड एज इट इज, एंड वैसे ही रूटीन फॉलो किया।
and the result is in front of you. एंड इट इज अमेजिंग राइट कि जिन्होंने बोला कि होगा नहीं, काफी अटेम्प्ट लगेगा, उनके लिए इट इज लाइक एक अटेम्प्ट में आपने करके दिखा दिया कि ये हो सकता है, अगर Yes, ठानो तो हो सकता है. yes, really. Means they were very surprised. Means really. गुड दैट यू डिड नॉट गेट कैरिड अवे विद देयर कमेंट्स एंड आपने खुद पे भरोसा रखा. ये एक मेजर एक यही मेन एक ट्रेट होता है सारे आर्मी लोगों का ही, कि वो अपने पे भरोसा रखते हैं और दूसरे की इतना नहीं सुनते. उनको पता है कि होगा तो होगा, तो वो. Yes, my mentor told me once they are Ravi Mali. I said, na, Major Ravi Mali. They told me that Amas is like a Brahmas. You just go once from there, your all confusion will clear. Means sometimes whenever I got demotivated कि नहीं हो पाएगा ऐसे कोई बोलता था, immediately I called him. Then he told me that just you go from them and you will clear that. अभी आगे का क्या प्लान है? आगे हाउ आर यू सीइंग थिंग्स? हाउ वुड यू मैनेज एवरीथिंग नाउ? अभी मेरी बेटी सीनियर केजी में है, तो वो घर में रह लेती है. मेरी मदर इन लॉ भी वेरी शी इज वेरी केयरिंग and my maternal house also is just near to my ओह, house, so they also support to take care of her. And just it's like a 1 year, and after then if means वो तो हमेशा साथ में ही रहेगी. फिर उसके बाद हाँ ट्रू. बस थोड़े दिन वो संभाल लेंगे. प्रिपरेशन के दौरान भी मैं उसको उनके साथ ही छोड़ दी थी, तो उसको आदत है उनके साथ रहने की. तो उसके बाद भी वो रह सकती है, तो एक दो साल तो रह लेगी. आई एम श्योर आपके हस्बैंड काफी प्राउड होंगे टू सी वेयर यू आर टुडे, एंड यू हैव जस्ट टेकन हिज लेगेसी अहेड, and you are proving that you are one of them who can do it. And of course जो भी आप कर रहे हो, it's out of the love that you have for him, and it has put you back on your feet. Definitely, ma'am. When he was with me, he was always pushing me to learn something new, and that helped me here. That always I always pushed my boundaries, and uh, कुछ नया मतलब करने के लिए हिम्मत भी आई. तो वो सब यादें मुझे मोटिवेट कर रही थी. तो डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली ही वुड प्राउड ऑफ मी. Yeah. And it's not just like I'm repeating this again. So it's not just one or two. You are going to be inspiring for so many people, including me. So when I hear your story, when I hear your struggle, फिर बाद में ऐसे लगता है कि यार हम छोटी छोटी चीजों पे कितने ये करते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. वी हैव सो मेनी पीपल हु कैन डू सो मच एंड हु आर डूइंग सो मच विदाउट इवन क्रिबिंग. जो आ रहा है वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करके वहां से निकल के एंड कुछ आगे और चैलेंज एक्सेप्ट करना लाइफ में. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. यस मैम. मैंने पहले एक चीज की, मैंने एक्सक्यूजेस देना स्टॉप किया. मीन्स so many times we can do it, but we give excuses for that and we stopped ourselves. So I stopped this first and excuses दिया उठने के लिए. मतलब अमास का शेड्यूल ऐसा है कि कोई भी excuses दे to avoid it because it's not too hectic. And after then घर में आने के बाद वही शेड्यूल, वही 2 बजे उठना, वही मतलब उधर तो हमें बस 2 घंटे सोने को मिलता था. इधर आने के बाद वही फॉलो करना इट्स टू डिफिकल्ट. घर में राइट. आने के बाद थोड़ा बहुत हम लेजी हो जाते हैं. बट वन थिंग आई मीन्स इधर लिख के ली थी. सर ने भी बहुत बार ऐसे बोला था कि चलता है का एटीट्यूड ही नहीं रखना है बस. बट फ्रॉम द डे फर्स्ट ही टोल्ड अस दैट चलता है, इधर नहीं चलता. तो फिर मैंने इधर लिख के भी लिया था कि नो चलता है एटीट्यूड, एंड मैं वो सब फॉलो करती थी और लिख के भी ली थी. इवन समटाइम्स आई जस्ट गो थ्रू विद दैट बुक एंड आई वाज रिटर्न मीन्स yes, each and everything I wrote down in that book. So again it motivated me to do the same routine. मैंने जब स्टार्ट किया था तब मुझे ग्रामर नॉलेज भी इतनी नहीं थी. इवन आई कुड नॉट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मैम. आई रिमेम्बर माई फर्स्ट डे. That time my ma'am told me to just create a video of your introduction. That time 25 to 30 times I just recorded, but not a single video was up to the mark. Really. So that's a long way you've come, and that is a lot of effort that you have put in yourself. Yes, that consistency matters a lot, ma'am. Every Yes. day we have to just striving for perfection. Every day, Yeah. every Yeah. day there is, if 1% growth is there also, I mean there, then definitely we can do anything. What's your name?
आपका नाम क्या है? श्राव्या। आपको पता है मम्मी क्या करेंगी? उसे बस पता है कि यूनिफॉर्म पहने दी। She don't know यूनिफॉर्म पहनेगी, ये पता है आपको मम्मी? और आपको अच्छा लगेगा मम्मी को यूनिफॉर्म में देख के? अरे वाह। जस्ट टू आस्क प्रियंका कि आपने ये जर्नी, जब आपके हस्बैंड शहीद हुए थे, तो इट इज ऑफ कोर्स अ टफ टाइम, एंड टू कम आउट ऑफ इट ऑब्वियसली काफी टाइम लगता है। हमारा जस्ट टू गिव एग्जांपल, एक छोटा सा चोट लगना या एक ब्रेकअप होना ही लोगों को इतना चोट पहुंचाता है, एंड टू कम समथिंग आउट ऑफ इट वेयर आपको एक एस्पेक्ट नहीं, आप एक आपके हस्बैंड को यू हैव लॉस्ट, coming from a family, now you have to start thinking कि how you will support your family, every mixed emotion, हर एक एंगल से you are in that stress. So it will be very inspiring if you let people know how you handled and what you can tell them. यस मैम, मतलब एसएसबी इट्स इजी, बट गेट आउट फ्रॉम दैट पेन इट्स नॉट एज इजी। मैंने पहले ही उसके बाद मैंने मेडिटेशन योगा स्टार्ट किया, बिकॉज ऐसे ही एसएसबी देने जाती तो कुछ पढ़ाई भी नहीं हो पाती और मैं अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाती। और जब भी उनके बारे में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सब यादें आ जाती है और रोना स्टार्ट हो जाता है। और बेटी के बारे में वगैरह तो पूछो तो फिर पूछो ही मत। तो फिर वो बात करना मुझसे फिर भी नहीं हो पा रहा था, फिर भी उस दुख से निकलने के लिए मैंने ब्रह्मा कुमारी का सेंटर ज्वाइन किया, प्रॉपर मेडिटेशन सीखा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी। ऑलरेडी आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर इंग्लिश, सो मैंने इंग्लिश की बेसिक किताबें पढ़ी, जिससे मुझे थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिले मेडिटेशन के बारे में। मीन्स पहले अच्छा इंसान और मीन्स कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे मतलब इस उस दुख को हील करना है, उसके बारे में पढ़ा और वो इम्प्लीमेंट भी किया। मेडिटेशन इट वाज द बेस्ट वे। इवन मैं एसएसबी में जाने के बाद भी फॉर एवरी टास्क आई वाज for means I took a break and did one minute meditation. Everyone was just chatting with their friends, but मैं पूरा 1 मिनट मेडिटेशन करती ही थी, और उधर विजुअलाइज करती थी कि मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। मतलब फ्यूचर भी इमेजिन करती थी कि मैं अफसर बन गई हूँ पूरा, मैं रिकमेंड हुई हूँ, मैं स्क्रीन इन हुई हूँ। ऐसे ऐसे बोलते हैं ना बाकी के लोग कि मेरा ये गलत हुआ वो गलत हुआ, बट मैं नहीं बोलती थी। आई नो मेरा भी सब अच्छा नहीं हुआ था, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग अगेन एंड अगेन दिस आई जस्ट मैनिफेस्ट ऑल गुड थिंग्स। मीन्स मेरा सब अच्छा ही होने वाला है। वट एवर रॉन्ग मीन्स जो बुरा होना था हो चुका है, अब सब अच्छा होने वाला है। मेरे हस्बैंड की ब्लेसिंग्स भी मुझे मिल रही है, वो सब पॉजिटिव वाइब्रेशंस में ऐसे पूरे एटमॉस्फेयर में क्रिएट करती थी। देन ऑटोमेटिकली दैट गिव्स मी बूस्ट इन माय परफॉर्मेंस। ऑटोमेटिकली सब निकल जाता था। इवन व्हाइल आई वाज स्टडिंग, बिफोर स्टडिंग आई वाज डूइंग 1 मिनट मेडिटेशन। वट एवर आई एम रीडिंग जस्ट मुझे याद आने वाला है उस वक्त भी, और मुझे मेरे दिमाग में पूरा फिट बैठ रहा है ऐसे करके। तो पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल दे विल टेल यू दैट यू कांट डू, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। इवन इन दैट एज 26 में आई लॉस्ट माई हस्बैंड, सो एवरीवन वाज सेइंग यू आर सो अनलकी। ऐसे गांव में तो ऐसे औरतें होती है कि मतलब तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा नसीब ऐसा ही है, अब तुम्हें पूरी जिंदगी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। और so many restriction, we feel like we are so unauspicious, means ऐसे बहुत अशुभ जैसे है हम, ऐसे फील कराया जाता है। तो हमारे यहाँ मतलब वीर नारी को तो पहले वो उससे मूव ऑन करना चाहिए, वैसी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड इवन मैंने पूरा उन लोगों से पूरा means दूर ही रही पूरा प्रिपरेशन के दौरान भी। अभी भी मतलब ऐसे लोग जो ऐसी बातें करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, मीन्स दे आर नॉट अ बैड पीपल, बट स्टिल इट्स नॉट गुड फॉर अस ना, सो Yes, जस्ट yes. कीप अवे So फ्रॉम देम। distance, हाँ, right. थोड़े डिस्टेंस, मतलब हम ऐसे स्ट्रांग नहीं होते हाँ, मेंटली, नहीं, हम और हमारा ऑलरेडी, वाइब्रेशन भी खराब होता है। हाँ ऑलरेडी हम बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हम स्टेबल हो जाए। और उसमें ऐसी तो फर्स्ट एड बॉक्स में रखती थी अच्छी अच्छी किताबें, जिसमें उसमें जैसे कोई गुड थॉट भी ऐसे, मतलब बीके शिवानी की 2-3 बुक्स मैंने खरीदी थी, तो उसमें से एक था कि फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा साथ में रखता है, इमोशनल फर्स्ट एड बॉक्स।
सो मैं एक छोटी सी डायरी लिख के अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखती थी. सो वेन एवर आई फील लो, मीन्स हमारे मतलब ऐसी सिचुएशन में बहुत बार ऐसी सिचुएशन अपने आप आ जाती है कि हम बहुत लो फील करते हैं, उनको याद करने लगते हैं. और ऐसे बोल जैसे लगता भी है कि इतना सब कुछ करने के बाद क्या ही करना है आगे, तो फिर किस मतलब अकेले ही तो रहना है, ऐसे सोच के कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता है. तो वो फर्स्ट एड बॉक्स इमोशनल वाला मैं वही निकाल के वो अच्छी अच्छी बातें पढ़ लेती थी. और सर ने भी बताया था कि किताबें मतलब एक बेस्ट फ्रेंड, दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड, Yes, yes, यू कैन yes. रीड एनी टाइम. So it is not just for people who are preparing for the exams, but you know, काफी अभी भी हमारे यहाँ पे काफी ऐसे होता है कि गांव में कैसे एक को सिर्फ नीचा गिरा सकते हैं या पुल डाउन कर सकते हैं, एंड हर एक औरत को वो इतना डिफिकल्ट होता है टू कम आउट ऑफ इट ओनली. तो जी. उनके लिए भी एक आपने ये अच्छा सुझाव दिया है. तो इट्स नॉट द एंड फॉर यू, इट्स द बिगनिंग फॉर यू. अभी आगे का आपको देखना है क्या है कैसा है. या We can set new example because not in village, everywhere, if there is a widow, any family function, she is like a boycotted, means she यस. can't मीन्स नॉर्मली जैसे हम जाते हैं कोई पूजा में आरती वगैरह, वो जैसे हमें कहीं ना कहीं वो रोकने की कोशिश करते हैं, दूर रखने की कोशिश कर सकते हैं. तो वो मतलब कहीं ना कहीं हमारे गहने वगैरह कहीं छूट जाते हैं. अगर कोई कुछ मतलब मंगलसूत्र वगैरह भी पहनो, सिंदूर वगैरह लगाओ, तो भी ऐसे देखने लग जाते हैं. सो आई वुड स्टार्ट आई विल वेयर स्टार. तो हमें चेंज करना है, कुछ बेटर करके दिखाना है. अब बाकी बाकी औरतें नहीं पहन सकती ना, वो पहन के दिखाना चाहिए. अब मुझे तो ऐसा लगता है अगर वो हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो हमें दिखाना चाहिए कि वी कैन डू बेटर. यस. एंड शुरुआत एक से ही होती है, फिर यस, यस. उनको देख के बाकी लोग शुरू करते हैं. सो हम्म. I am hoping that this video reaches to as many as people as possible, and you're going to be an inspiration throughout. We have Dr. Mohinder Pal Singh with us today, and we would like to know a few, and we would like to know his thoughts about Mrs. Priyanka and what he thinks about her as a candidate and the future inspiration for all women. Thank you, Sujata, for connecting me and talking about one of our students, Priyanka Khoth. So, as you all viewers must have seen, Sujata has spoken to Priyanka, a very dedicated student on the outset, I would say. A student who was very focused in her goal. Priyanka is going to join the OTA Chennai in the vacancy of a armed forces widow. Her husband was a Nayak in signals, and he passed away. And after his passing away, Priyanka, the mother of a small child, she decided to wear the uniform and take the legacy forward. What her husband has served for the country. So initially she tried to find out about what is SSB, how she can prepare, and then she initially joined our communication skills classes, where I think she realized that she needs to hone up her communication skills. So about 2 months she attended those classes. Then she came to me. I saw her in my 3-week course at AMAS, the course Serial 67. From the day one, I could see that josh in her to learn. It was her first attempt. She knew nothing about SSB, what is SSB looking for, how you should prepare, everything what the assessors taught her here, she kept imbibing. Even the smallest and the minutest of the details, she kept imbibing, she kept noting down. Very meticulously, she completed all the work, curriculum, which was she was made to go through, alongside the other girls who were at least 5 to 6 years junior to her age. She was competing with them. And after finishing her course, almost about 3 weeks after that, she had her SSB. And initially she went there. There were other widows also who had come well prepared, but it was only Priyanka who got screened in. And after that, she performed so well that on the 5th day, the Services Selection Board found her fit to be an officer. I really salute her perseverance. I salute her dedication. In spite of being a mother, in spite of running a house staying in a village in Kolhapur district of Maharashtra, she has
put in her effort. And alongside, she's also doing teaching in a school. So all in all, I found Priyanka a very suitable candidate. I'm sure she will do her training well and become a very good officer in the Indian Army, where the Indian Army will be proud of her, our family will be proud of her, and of course, I as a mentor will be very proud of her. All the best to you, Priyanka, and thank you, Sujata ma'am, to take us through the journey which Priyanka has taken up this aim of joining the Defence Forces, becoming an officer. I'm sure many girls and women will get inspired, will get motivated to do the same. Thank you for your time, Priyanka, and we will see you soon. Thank you so much, Thank you. ma'am. And thanks to Amas first. Really. Without Amas, it can't be possible. Really. मतलब मुझे अगर एसएसबी के बारे में पता ही ना तो मैं कैसे दे सकती हूँ. तो एमास का मतलब आई कांट से एनीथिंग दैट कर्नल सर ने मुझे पूरा प्रिपेयर करके उधर भेजा था. दे टोल्ड मी ईच एंड एवरीथिंग दैट ऑल, मतलब उनका पूरी फैकल्टी को और पूरे एमास को एंड स्पेशली कर्नल सर को थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you so much. And it was truly inspiring meeting you. Looking forward to see you in a much better position in your career, and hope you make all of us proud. Thank All you the so much. best. Thank you.